Good morning students, welcome back again to Sri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Bal Bharati standard 7th. So students, take out your textbook, page number 35. Today we are going to see poem number 2.4, How Doth the Little Busy Bee. So here in this poem given two short poems. Okay, so in the first part here talking about the bee, how this bee is very busy, है ना. बी जो होती है आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली हमिंग बजिंग साउंड क्रिएट करती है, मीन्स वो कंटिन्यूसली वर्क करती है ना, दिन भर काम करती है, दिन भर मेहनत करती है, इसीलिए बी को क्या बोला गया है, बिजी बी. Got it? So in the first part here given, how doth this little busy bee, and she is continuously doing hard work for her future. She collects the nectar from the various flowers, okay, and how she builds her cell, then how she filled the nectar in that cell. So all these are given in this first part. And the second part is about what? A parody. Parody means to imitate, to copy. Okay, in the first part here, the poetess, that is Isaac Watts, he had written the poem, and the second part, parody, is written by Lewis Carroll. Okay, so let's start. How doth the little busy bee? Why the bee is called busy? Because it continuously works harder and harder and never stops, as you know that. So first I'll read the poem, just listen very carefully and then we will see the explanation. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. By Isaac Watts. So in the first part, in the first stanza, the poet is want to convey that how doth this little busy bee, ये bee जो है वो कितनी busy है कि means she never stops, she continuously doing hard work. Okay, improve each shining hour means she never want to वेस्ट इट्स टाइम. ओके, वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती है, वो कंटिन्यूसली एक एक मिनट का भी यूज़ करना चाहती है और इस तरीके से वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है. एंड गैदर हनी ऑल द डे, दिन भर वो क्या कलेक्ट करती है, हनी. ओके, एंड फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, ओपनिंग फ्लावर मीन्स ब्लूमिंग. ओपनिंग मीन्स यहाँ किसको बोला गया है, ब्लूमिंग. खिले हुए जो फूल हैं उनसे वो नेक्टर जूस जो है वो कलेक्ट करती है, गैदर करती है. So this is the work of the bee. Got it? How skillfully she builds her cell. So यहाँ पर second stanza में क्या बोला गया है कि वो किस तरीके से अपना सेल, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है आपने देखा होगा, वो किस तरीके से बनाती है. So यहाँ पर आप देखेंगे each compartment of the honey bee, what she creates. So each compartment is having a दिस शेप लाइक. ओके, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, तो वो इस तरीके से अपना जो घर है वो बनाती है, कितनी मेहनत से बनाती है और कितने स्किलफुली एक बराबर होता है वो. हाउ नीट शी स्प्रेड्स हर वैक्स, और फिर आपने देखा होगा कि कितनी भी बारिश आ जाए वो छत्ता गीला नहीं होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या स्प्रेड होता है, वैक्स. एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स, और जो वो जूस गैदर करती है, इकट्ठा करती है अलग अलग फ्लावर्स से, तो वो ला के यहाँ पर स्टोर करती है. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ द बी हियर एक्सप्लेन्ड. गॉट इट? डॉथ मीन्स डज. दिस इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड हियर यूज्ड. डॉथ मीन्स डज. गॉट इट? नाउ द सेम part is now here given in a parody form. Parody means, as I said, that to imitate, to copy. किसने कॉपी की है, बाय लुइस कैरोल. यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट पार्ट में किस तरीके से कितनी मेहनत कर रही है वो बी, और यहाँ पर उल्टा जो सेकंड पार्ट में बताया गया है क्रोकोडाइल के बारे में, जो कि बहुत लेजी है.
ठीक है, और वो कंटिन्यूसली बस अपनी स्केल्स को चमकाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है और फिशेस को खाने का काम कर रहा है, यानी कितना वो लेजी है, यहाँ उल्टा बताया गया है. सो लेट्स सी हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. So here in the first part of the parody, what is given, this is the funny part that is imitated here by this poet Lewis Carroll. He is saying that how doth the little crocodile, ये crocodile कैसा है, he is very lazy. इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल, वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, बस अपनी टेल को शाइन करने का काम कर रहा है. एंड पोर द वाटर्स ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल, नाइल जो रिवर है जिसमें ये क्रोकोडाइल है, वो उसमें से पानी लेकर अपने टेल को इम्प्रूव कर रहा है. मीन्स और उसकी टेल ऑलरेडी चमक रही है बट उसमें वो और पानी डाल रहा है उसको चमकाने के लिए. ओके, गोल्डन स्केल मीन्स आपने देखा होगा क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है वो कौन से कलर का होता है, लाइक अ गोल्डन. ओके, एंड स्केल मीन्स उसकी जो स्किन होती है स्केली होती है, तो उसको वो चमकाने का काम कर रहा है. हाउ चीयरफुली ही सीम्स टू ग्रिन, ग्रिन मीन्स स्माइल, वो बहुत ही चीयरफुली स्माइल कर रहा है. हाउ नीटली स्प्रेड हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स जबड़ा, वो अपने जबड़े को खोलकर स्प्रेड करके एकदम चीयरफुली स्माइल कर रहा है. एंड वेलकम्स लिटिल फिशेज इन विथ जेंटली स्माइलिंग जॉज, और जितनी भी फिशेज हैं वो सभी को वो वेलकम कर रहा है, किस लिए, खाने के लिए, है ना. फिशेस को वो वेलकम कर रहा है खाने के लिए. सो यहाँ पर देखिए उसकी जो स्माइलिंग है वो किस लिए है, कहा जाता है ना खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, तो यहाँ वो स्माइलिंग तो कर रहा है लेकिन अपने काम से, किसके लिए, फिशेस को खाने के लिए. ठीक है, जो कि यहाँ बहुत लेज़ी बताया गया है इस क्रोकोडाइल को. वहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि बी कितनी मेहनत करती है, दिन भर मेहनत करती है, अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो कर रही है और कभी भी वो स्टॉप नहीं होती. शी कंटिन्यूसली वर्क. एंड नाउ इज इन द सेकेंड पार्ट, हियर अपोजिट थिंग इज गिवन, दैट क्रोकोडाइल ही इज़ वेरी लेजी एंड जस्ट improving his shining tail for eating the fish. Okay, so this is the explanation of the poem. I hope you had understood. Okay students, and now we will do the exercise. Thank you.